प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जय मसीह की। दयानंद ब्रदर है, विजय सिस्टर। हाँ है। ओके, तो उनको जरा बोलिए, प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हाँ। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए। आज तूने हमें नया दिन दिया, संध्या के समय के प्रार्थना में एकत्रित होने के लिए तो समय दिया, इसलिए थैंक यू पिता परमेश्वर। तेरे अनुग्रह तेरी दया में रहने के लिए सहायता कर प्रभु। जो हमारे लिए वचन आएगा वो हम उसके साथ चलने के लिए अनुग्रह करके और हमारे कार्य रूप में जीवन में चलाने के लिए सहायता कर पिता। और वचन समझने के लिए हमें ज्ञान बुद्धि से भरपूर से भर दे मेरे खुदा पर। हमें ये सभी भाई बहनों को भर दे पिता मेरे खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पूरे आज के कलीसिया के लिए, आज के मंडली के लिए, आज की स्तुति आराधना के लिए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ जो भाई जूस ब्रदर ने अभी आज वचन सुनाएंगे, वचन के जरिए हमारे जीवन में प्रभु हम समझ सके और हर एक के जीवन में कार्य करे और एक दूसरे के लिए उत्तेजना बने, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज की कलीसिया के लिए। आज संध्या समय अपने और इसके धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आज की मीटिंग के लिए तो आशीष से भर देना और अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। हम सभी लोगों के तेरे मार्ग में चला और ज्ञान बुद्धि से भर दे और हमारा मन उस प्रार्थना की ओर लगा रहे और किधर नहीं पिता परमेश्वर भटके नहीं, इसलिए प्रार्थना करता हूँ आज की कलीसिया और तेरे हाथों में सौंपता आज का दिन पिता परमेश्वर। इस अनुग्रह कर प्रभु। आज की प्रेयर के लिए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता पिता, आमीन। आमीन। तो ये समय बच्चों के लिए है। ओके, बच्चे हैं, थोड़े बहुत बच्चे हैं, तो हम लोग शुरू करेंगे बच्चों। पहले हम लोग जो लास्ट टाइम में हमने सीखा है वो जस्ट एक बार रिवाइज करेंगे। ओके, पहले हम प्रार्थना का जो गीत है वो गाएंगे। Confess to this, what a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, but Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. Wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing can stand again. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, and yours is the glory, and yours is the name above
name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Let us once again sing from Death Could Not Hold You, and let us believe in it, and let us sing faithfully, believing in it. In death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again, and you have no rival, you have no equal, and now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Yes, Lord, we thank you, O Lord, because we serve the King. We serve the Kings of Kings and the Lord of Lords, who is seated on the throne, who overcame death, who overcame sin, O Lord. And we thank you, O Lord, for that name, O Lord, of yours that we have with us, a powerful name, a beautiful name, O Lord. And Lord, nothing can stand against you. There is no one, O Father God, equal to you, O Father God. And it is so true, O Lord. We thank you, O Lord, at every moment you are there with us, O Lord, and that you reign, O Father, that you are sitting on the throne, O Lord, and that no situation, no circumstance, O Father, nothing in our lives, O Lord, can stand against you, O Father. Yes, Lord, we thank you, O Lord, for everything, O Lord. We thank you that we magnify such a great God, O Lord. We thank you, O Lord, that we can testify and praise, O Lord, about what you did on that cross, O Lord, and how, O Father, you rose up again, O Father, overcoming, O Lord, Satan, O Father God, on that cross, O Lord. Yes, Father, and we thank you for it, O Lord. We thank you, Lord. प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता
मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरी दुहाई तू सुनता। मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। Yes, Lord, we thank you, Father. We thank you, Lord, for your goodness, O Lord, that is in our life, O Lord. Yes, Lord, that your goodness stands forever, O Lord, that you are faithful, O Lord, that you never fail, O Father God, that you never fail us, O Lord, and we thank you, O Father. We thank you, O Lord, in every situation, in every high and every low of our life, O Lord, that you are there with us, O Lord. In every problem, O Lord, you are that strong fortress, O Father God, where we can run into, O Father, and where we find shelter, O Lord. We thank you, O Lord, for your word, O Father God, that you will never leave us nor forsake us, O Lord, that you will never hide your face from us, O Father God, but you will always incline your ears towards us, O Lord. We thank you, O Lord, for each and every verse, O Lord, of yours, O Lord, and your faithfulness in our lives, O Father, and that we are experiencing it every day, every minute of our life, O Lord, that we are experiencing you, your goodness, your faithfulness, your love, and your favor in our life, O Father God. We thank you, O Lord. We thank you, Father. Lord, we thank you for this time of worship, O Father, that you have given us, O Lord. We give this time into your hands, O Father. We also pray, O Lord, that you bless Joe's uncle, O Lord. You lead him and you guide him, O Father God. Help, O Lord, that you may speak more through him, through us, O Father. And the word, O Father, that comes to us, O Lord, that it may fall on good ground, O Father God, and it may bear fruits, O Father God, that it will convict our hearts, O Father God, and that you will speak to us, O Lord, more and more, O Father God. Prepare us, O Lord, prepare our hearts, O Father, to receive your word, O Lord. We thank you, Lord, and we give this time into your hands, O Father. We ask this prayer in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Thank you, Lona, for leading us in worship. Praise God. और एक बार सबको जय मसीह की। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ इस प्रकार से और एक बार हम सबको मौका मिला मिलने के लिए, आराधना करने के लिए, संगति में समय निभाने के लिए मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद। जो चीजों का हमें आदत लग जाता है,
अक्सर मनुष्य का एक सोच होता है कि उन चीजों का अहमियत चला जाता है। ओके, जब लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च में, उसके बाद जब भी हम जूम मीटिंग में इस प्रकार से बाइबल स्टडी में मिलना शुरू किए, तब हम सबको बहुत कितना अच्छा लगा कि चर्च में व्यक्तिगत रूप से हम मिल नहीं पा रहे, लेकिन ऐसा जूम के द्वारा हम मिल पा रहे। ओके, लेकिन हम लगातार अपने आप को हम जांचते रहे। लेट अस कंटिन्यू टू एग्जामिन आवरसेल्फ, क्या हमारे अंदर वही उत्तेजना अभी भी है या नहीं, ये हम जांचते रहना चाहिए। जो चीजों का आदत लग जाता है, वो मनुष्य का स्वाभाविक सोच होता है कि उसका अहमियत चला जाता है। ओके, और मैं विश्वास करता हूँ हमारे अंदर वैसा नहीं है। हम सब आज भी उत्तेजित है और हम एक दूसरे को उत्साहित करते रहेंगे। ओके, वचन में, प्रार्थना में लगे रहने के लिए। आमीन। लेट अस कंटिन्यू इन द वर्ड। हम आज के वचन के लिए निर्गमन का पुस्तक उसका निर्गमन का पुस्तक उसका 23 अध्याय में जाएंगे। एक्सोडस चैप्टर 23 उसका 23 अध्याय। पिछले हफ्ते हम सीखे थे कि कैसा परमेश्वर मूसा से कहा कि इजराइलियों के साथ वो एक दूत को भेजेगा उनकी रक्षा करने के लिए। इस बात को हमने देखा था, और कैसे परमेश्वर नए नियम विश्वासियों के लिए भी अपना पवित्र आत्मा का वादा किया था कि यीशु स्वर्ग जाने के बाद पवित्र आत्मा एक सहायक हमें भेजेगा, और जैसा इजराइलियों के लिए उस मरुभूमि यात्रा में परमेश्वर स्वयं एक दूत बनकर उनके आगे आगे चलता गया और उनको मार्गदर्शन करता गया। उसी कार्य हम विश्वासियों के लिए, मसीह लोगों के लिए पवित्र आत्मा आज हमारी अगुवाई करता है। यीशु के शब्दों के द्वारा जब वो आएगा, जब सहायक आएगा, वो तुम्हें सिखाएगा और वो तुम्हें याद दिलाएगा जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है। तो पवित्र आत्मा हम सबको दिन प्रतिदिन अगुवाई करता है। हमने ये भी देखा, जैसा इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, सावधान रहो, 23 अध्याय का 21 वाक्य में, सावधान रहो कि तुम उस दूत की हर बातों को आज्ञा पालन करना और क्या न करना। क्या लिखा है वहां पे? डू नॉट प्रोवोक हिम। व्हाट इज द हिंदी वर्ड? 21 वाक्य 21। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना। हाँ, विरोध न करना। इंग्लिश में लिखा है डू नॉट प्रोवोक हिम। प्रोवोक मतलब उसको उनको उत्साहित मत करना तुम्हें दंड देने के लिए, तुम्हें उनके छड़ी से दंड देने के लिए उत्साहित मत करना। जैसे बच्चे माँ बाप को कभी कभी उत्साहित करता है। उत्साहित मतलब मैं उकसाना, सॉरी उकसाना, सॉरी मेरा गलत शब्द हुआ था। तो बच्चे कभी कभी माँ बाप को उकसाते हैं। क्यों? मार खाने के लिए। जब माँ बाप ना बोलते हैं कुछ चीज का, बार बार बच्चे जिद करते हैं। बहुत जिद करने के बाद माँ बाप को 2 मार देना पड़ता है। तो बच्चे उकसाते हैं
कभी कभी माँ बाप को, उसी प्रकार परमेश्वर चेतावनी देता है, आज्ञा पालन करके जियो। ये दूत को जो मैं तुम्हारे रक्षा के लिए भेजता हूं और तुम्हें मार्गदर्शन के लिए भेजता हूं, उनका आज्ञा पालन करके जियो, उनको उकसाना मत। यदि उकसाएंगे तो क्या होगा, पढ़िए आगे। तो उसका विरोध न करना, हाँ, तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। ब्रदर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, लिटिल लाउडर। ओके। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। हाँ, यदि उकसाएगा उनको तो वो अपराध क्षमा नहीं करेगा, दंड मिलेगा। तो ये चेतावनी इजरायली लोगों को परमेश्वर ने दिया था, उसी प्रकार नए करार के विश्वासियों के लिए भी पवित्र आत्मा के विषय में परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि पवित्र आत्मा को शोकित न करना। और यीशु मसीह ने सुसमाचार के पुस्तक में जो लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे सब अपराधों को क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो अपराध किया जाएगा वो क्षमा नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। हम सबके अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है उनके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर दिया है। और उस दिन से पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। जब हम कुछ पाप करने का इच्छा भी रखते हैं या सोचते भी है, उस धीमी आवाज हमारे अंदर, ओके, वो एक चेतावनी या हमें एक क्या बोलते हैं, एक सिग्नल देता है, नहीं ये गलत है। हमें पता चलता है कि ये सही नहीं है, फिर भी हम उस गलत मार्ग में ही आगे बढ़ते हैं, तो वो ठोकर का कारण बन सकता है। हम सब के लिए ये एक सीख है। ओके, वो ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज का वचन परमेश्वर कहता है कि यदि तुम आज्ञा पालन करोगे, ओके, 22 वाक्य पढ़ो। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे दोहियों का दोही बनूंगा। ओके, इस वचन पर थोड़ी देर हम मनन करेंगे। ओके, यदि तू उसका मानेगा, ओके, परमेश्वर जिनको हमारी रक्षा के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए भेजता है, ओके, वो और कोई नहीं है, वो परमेश्वर स्वयं है। ओके, पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमें मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है। ये हमारा कर्तव्य है कि उनका आदर करना, पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन करना और उनके बताए हुए मार्गदर्शन में चलना। लेकिन तो परमेश्वर क्या कहता है, यदि हम आज्ञा पालन करेंगे तो परमेश्वर हमें एक वादा करता है। क्या है वो वादा? मैं तुम्हारे दुश्मन, पढ़िए, मैं तेरे शत्रुओं को शत्रु और तेरे दोहियों का दोही बनूंगा। तो मैं शत्रु बनूंगा। किसका शत्रु? तेरे शत्रुओं का शत्रु मैं बनूंगा। परमेश्वर स्वयं शत्रु बनेगा यदि हम आज्ञा पालन करके जिएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है यहाँ पर, जो हमें कभी हमारे जीवन में नहीं भूलना है। अक्सर हमारे जीवन में जब तकलीफ या मुसीबत या कुछ प्रॉब्लम आता है, ओके, कई बार मैं ये कह चुका हूं, मैं और एक बार दोहराऊंगा, क्षमा कीजिए, अक्सर विश्वासी लोग आंख बंद करके शैतान को दोष देते हैं और यीशु के नाम से शैतान को भगाने के लिए हम भाग निकलते हैं। ओके, नहीं, उसके पहले, शैतान को दोष देने के पहले, ओके, हमें अपने आप को जांचना जरूरी है।
ये मुसीबत, ये तकलीफ मेरे जीवन में क्यों आया है? क्या मैंने आज्ञा पालन नहीं किया इसीलिए आया है? क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट हमें सिखाता है कि यदि हम आज्ञा पालन करेंगे तो हमारे शत्रुओं का शत्रु परमेश्वर स्वयं होगा, वो हमारे लिए युद्ध लड़ेगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ वी ओबे, we don't even have to shout and yell and do all kind of drama to drive out Satan. Your very presence in front of Satan, when you stand, he will tremble. If you and me obey God and live life, यदि हम परमेश्वर का आज्ञा पालन करके जिएंगे तो हमें बहुत बड़ी आवाज या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है शैतान के सामने उसको डराने के लिए। हमारा उपस्थिति शैतान के सामने केवल काफी है, वो भाग जाएगा। वो हमारे वजह से नहीं, हमारे कुछ गुण के वजह से नहीं, क्योंकि हमारा उपस्थिति हमारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा का उपस्थिति बनता है, क्योंकि हम उनके आत्मा को लिए फिरते हैं, हम उनका मंदिर है। ओके, तो हम जब खड़े हैं आज्ञा पालन करते हुए, तब शैतान हमारे अंदर के उस पवित्र आत्मा को देखकर कांपता है और चले जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा शैतान का शत्रु बनकर खड़ा रहता है। The Holy Spirit backs us. The Holy Spirit supports us when we live a holy life and obedient life. यदि हम आज्ञा पालन करके जिएंगे तो पवित्र आत्मा हमें सपोर्ट करता है। What do you call for support? हमें मदद करता है। वो हमारे पक्ष में, वो हमारे पक्ष में रहता है। पवित्र आत्मा हमारे पक्ष में रहता है जब हम आज्ञा पालन करके जिएंगे तो। ओके, और शत्रु हमें देखकर नहीं भागता, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे पक्ष में है ये देखकर शैतान भागता है। ओके, तो यीशु मसीह को एक उदाहरण के रूप में आप देखो, जब उस कब्रिस्तान में दुष्ट आत्मा से भरा हुआ वो व्यक्ति जब यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह ने कुछ कहा भी नहीं। वचन स्पष्ट कहता है कि वो व्यक्ति कांपने लगा, थरथराने लगा और पुकार कर कहने लगा, क्या तू हमें हानि पहुंचाने आया है? यीशु ने कुछ कहा भी नहीं। ये मैं कह रहा हूं, उनको एक उदाहरण ले लो, यीशु मसीह को। ओके, शत्रु कांपने लगेगा जब शत्रु हमारे अंदर यीशु मसीह को देखेगा, पवित्र आत्मा को देखेगा कि पवित्र आत्मा हमारे पक्ष में है। और पवित्र आत्मा हमारे पक्ष में कब रहेगा? जब हम आज्ञा पालन करके जिएंगे तब। हमें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। All that we need to think is introspect ourselves. Are we living an obedient life? If yes, the Lord is on our side. When I say the Lord is on our side, that doesn't mean that everything will be hunky-dory with us. Everything will be good. We will live on bed of roses. No, that's not what I mean to say. Okay? The Holy Spirit, the Lord will be on our side. That's enough. That's enough. Okay? तो यहां पर एक सिद्धांत हमें सीखने मिलता है 22 वाक्य में। यदि हम आज्ञा पालन करते हुए जिएंगे तो परमेश्वर कहता है कि तेरे शत्रुओं के लिए मैं शत्रु बनूंगा और तेरे विरोधियों के लिए मैं विरोध बनूंगा, मैं विरोध करूंगा। ओके, द लॉर्ड विल फाइट द बैटल फॉर अस। वी कैन हैव a very peaceful sleep at night. We will not need to worry about anything. Okay? तो 23 वाक्य में क्या कहता है? 23. इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर
तुझे एमोरी, हित्ती, परजी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। हाँ, और एक कार्य परमेश्वर वादा करता है करने के लिए। क्या वादा करता है? मेरा दूत तेरे आगे आगे जाएगा और अमोरी, हित्ती, पेरिजी, कनानी और हिविती, जेबूसी, इन सब शत्रुओं को क्या करेगा? यहाँ पहुंचाएगा। हाँ, मैं तुम्हें इन शत्रुओं के नगर में या इन शत्रुओं के बीच में पहुंचाएगा और उनको क्या करेगा? और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर सत्यानाश करेगा। जो तुम्हारे आगे आगे जाएगा वो व्यक्ति करेगा। The Lord goes before us. Amen. The Holy Spirit goes before us. He will prepare the way for us. Like before Jesus started his ministry, John the Baptist, his ministry was to prepare the way for the Lord. Okay. तो प्रभु के लिए मार्ग तैयार किया गया था। उसी प्रकार हम जो उनके शिष्य हैं, हमारे लिए मार्ग तैयार किया जाएगा। ओके। शत्रुओं के बीच में इस वचन के हर शब्दों पे ध्यान दो। परमेश्वर ये नहीं कहता है जहां पर अमोरी लोग हैं, हित्ती लोग हैं, कनानी लोग हैं, वहां पर मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत ही एक शांत जगह में लेकर जाऊंगा। ऐसा नहीं कहता परमेश्वर। मैं तुम्हें उनके बीच में लेकर जाऊंगा। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर हमें मुसीबतों के बीच में क्यों लेकर जा रहा है? जरा सोच कर देखिए, परेशानियों के बीच में क्यों लेकर जा रहा है? Why the Lord is not leading us always in green pastures? Why is he taking us through the valleys, in between the thorns? Because he is saying, I will take you in between the thorns and I will remove the thorns. I will take you between the difficult situations in your life and then I will take care of it. So never ask the Lord, God, why did you brought me into this difficult situation? Why am I facing this? You are facing this, I am facing this because number one, the Lord is with us and he wants to prove his power. परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमें मुसीबतों के बीच में अगुवाई किया है। क्यों? हमें अगुवाई करके मुसीबतों के बीच में लाया है। क्यों? क्योंकि वो अपना सामर्थ को दिखाए। इसीलिए वो अपने सामर्थ को दिखाता है। ओके? और वो हमें उन मुसीबतों के बीच में से चलाता है। ओके? तो इन सब का शर्त क्या है? आज्ञा पालन यदि हम करेंगे तो परमेश्वर हमारे शत्रुओं के लिए वो शत्रु बनेगा। आज्ञा पालन यदि हम करेंगे तो वो हमें अगुवाई करेगा, हमारे शत्रुओं के बीच में लेकर जाएगा। यीशु का उदाहरण और एक बार मैं आपको देता हूं। यीशु के साथ क्या हुआ था? मत्ती का 4 अध्याय निकालिए। मत्ती का पुस्तक 4 अध्याय। चौथा अध्याय उसका पहला वाक्य पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। बस, तब आत्मा यीशु को कहां ले गया? जंगल में ले गया। जंगल में ले गया। कौन है ये आत्मा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया। क्यों? ताकि इब्लिस से, शैतान से उसकी परीक्षा हो। हाँ, शैतान से उसकी परीक्षा होने के लिए 3 बार शैतान यीशु मसीह का परीक्षा लेना चाहा।
उसको ऊंचे पहाड़ से उनको गिराना चाहा, उनको मार डालना चाहा, ओके। लेकिन शैतान को दोष देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं यीशु को अगुवाई किया इस परीक्षा के अंदर, ओके। तो जरा सोच कर देखो, उस परीक्षा के बीच में यदि यीशु ऐसा प्रार्थना किया होता परमेश्वर से, प्रभु तू मुझे इस मुसीबत में क्यों डाला, मैं तेरा बेटा हूं, ओके। यीशु मसीह के बारे में तो हम कॉन्फिडेंस से, व्हाट डू यू कॉल फॉर कॉन्फिडेंस, साहस के साथ हम यीशु मसीह के बारे में तो हम तो बिंदास कह सकते हैं कि यीशु मसीह कोई पाप नहीं किया है। वचन कहता है वो पूर्णता से आज्ञा पालन करके जिया है परमेश्वर का। फिर यीशु मसीह परमेश्वर से तो ये नहीं पूछा मैं आज्ञा पालन करके जिया, फिर भी शैतान के साथ मेरा इतना परीक्षा क्यों हो रहा है, क्यों इतना तकलीफ मेरे जीवन में, यीशु ने ये नहीं पूछा, ओके। क्योंकि ये पहला वचन, मत्ती का 4 अध्याय का पहला वचन स्पष्ट कहता है, पवित्र आत्मा ने यीशु को लेकर गया उस जंगल में शैतान का सामना होने के लिए, ओके। तो हम सबके जीवन में, ओके, हर एक उन मुसीबतों के बीच में, ओके, पवित्र आत्मा यदि हमें ले जाता है, ओके, तो निश्चय रहो कि परमेश्वर शैतान का विरुद्ध एक दुश्मन बनकर खड़ा होता है, ओके। कई बार मुसीबतों के बीच में हम स्वयं एक गलत या आज्ञा उल्लंघन करके गलती करने की वजह से हम स्वयं मुसीबतों के बीच में भी पड़ जाते हैं, वो बात अलग है, उसके लिए हमें अपने आप को सुधारना है। लेकिन जब हम सही है तब भी पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर सकता है, इट इज पॉसिबल। तो यहाँ पर निर्गमन का पुस्तक 23 अध्याय का 23 वाक्य में हमने पढ़ा कि दूत ने, परमेश्वर कहता है मेरा दूत तेरे आगे आगे जाएगा और तुझे अमोरी, हित्ती, पेरिजी, कनानी, हिवित और जेबूसी के लोगों के बीच में ले जाएगा और मैं उनको क्या करेगा, टुकड़े टुकड़े, ऐसा लिखा है ना, सत्यानाश कर दूंगा। हाँ, मैं उनका सत्यानाश कर दूंगा, ओके। तो परमेश्वर दुश्मनों के बीच में हमें ले चलता है। तो ये इजरायली लोगों की बात है, हमारे लिए तो आज कोई क्या बोलते हैं, मानुषिक एक मनुष्य दुश्मन नहीं है, ओके। शारीरिक तौर पे कोई दुश्मन नहीं है हमारा। तो हमारे लिए कौन है, मैंने ये पहले भी कह चुका हूं, हमारे लिए अमोरी, पेरिजी, कनानी, हित्ती, ये कौन है, ओके। हम देखेंगे वचन के द्वारा। यहां पर एक चीज मैं कहना चाहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र देश में से छुड़ाया, बाहर निकाला, और यहां पर 23 वाक्य में कहता है कि अब परमेश्वर वही इजरायलियों को अंदर लेकर जा रहा है। एक जगह से बाहर निकाला और दूसरे जगह में अंदर लेकर जा रहा है। गुलामी से बाहर निकाला और अमोरी, कनानी, पेरिजी ऐसे लोगों, दुश्मनों के बीच में अंदर लेकर जा रहा है। इंग्लिश में लिखा है 23 वर्स, इट सेज इन इंग्लिश, For my angel will go before you and bring you into the Amorites and Hittites and Perizzites and Canaanites and Hivites and Jebusites, and I will cut them out. So our God is a God who brings us into something. Okay? In chapter 3 verse 17, निर्गमन का 3 अध्याय 17 वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला। He brought them out of Egypt.
chapter 3 verse 17 says. So he is a God who brings us out, and he is a God who brings us in to something. Okay? The problem is, we often think that God brought us out of the bondage so that we can live a very comfortable life. No, God brings us out of the enemy and takes us into the enemy land. परमेश्वर हमें दुश्मन के गुलामी से छुड़ाता है, बाहर निकालता है और कुछ और दुश्मनों के उस क्षेत्र के अंदर लेकर जाता है। लेकिन अब जो दुश्मनों के क्षेत्र के अंदर परमेश्वर हमें ले चलता है, वहां पर दुश्मनों का गुलामी में रहने के लिए नहीं, परंतु उस क्षेत्र में घुसकर दुश्मनों को बाहर निकालने के लिए। आमीन। तो हमारे लिए कौन है ये दुश्मन जिसके अंदर परमेश्वर हमें ले चलता है, जो क्षेत्र में हमें ले चलता है? नए नियम विश्वासियों के लिए कौन है ये? शैतान के गुलामी से हमें छुड़ाया, ये हम सब जानते हैं। जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारा उद्धार हुआ, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने हमें शैतान के गुलामी से छुड़ाया। अब हमें छुड़ाकर परमेश्वर हमें कुछ और दुश्मनों के उस क्षेत्र में ले चलता है। वो कौन है? वो कौन है? ताकि हम उन दुश्मनों को मार दे। ओके? एफिसियों का पुस्तक 6वां अध्याय उसका 12 वाक्य पढ़िए। एफिसियों का पुस्तक 6वां अध्याय 12 वाक्य, एफिशियंस 6 वर्स 12। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की इस आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा युद्ध, हमारा मल्ल युद्ध, हमारा युद्ध किससे नहीं है? लहू और मांस से नहीं है। लहू और मांस से नहीं है। तो लहू और मांस मनुष्य को दर्शाता है। ओके? इजरायलियों के लिए पुराने करार में शारीरिक तौर पे था दुश्मनी। ओके? राजा महाराजाओं के समय पर देश देश के बीच में युद्ध होता था। ओके? दो राजाओं के बीच में, उनके सेनाओं के बीच में युद्ध होता था। लेकिन आज हम मसीह लोग, हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है। तो आत्मिक स्तर में हमारा युद्ध आत्मिक आत्माओं से है। ओके? मांस और लहू शरीर से नहीं, लोगों से नहीं, हमारे पड़ोसी से नहीं, पति और पत्नी के बीच में नहीं, माँ बाप और बच्चों के बीच में नहीं। ओके? किसी इस संसार के कोई भी व्यक्ति से नहीं हमारा युद्ध होना चाहिए। हम प्रार्थना करना चाहिए हर दिन कि परमेश्वर हमें उन आत्मिक आंखों को दे ताकि हम हमारे दुश्मन को पहचान सके। कई बार अक्सर हमें गलतफहमी होता है। हमारे विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति कुछ करता है तो हम दुश्मनी मोल लेते हैं उस व्यक्ति के विरुद्ध। यदि हमारा आत्मिक आंखें खुल जाए तो हम उस व्यक्ति के पीछे उस आत्मा को पहचानेंगे जो हमारे विरुद्ध, हमारे भावनाओं के विरुद्ध युद्ध करता है। ओके? हमारे शरीर के विरुद्ध नहीं, हमारे भावनाओं के विरुद्ध, हमारे पैसों के विरुद्ध नहीं, हमारे भावनाओं के विरुद्ध। ओके? इस भावनाओं के बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। Our fight is against the evil spirit. Okay? Because the evil spirit is targeting your emotions. I'm telling you, yours and mine emotions. ये दुष्ट आत्मा शैतान, ओके, हमारे भावनाओं से खिलवाड़ करता है। आप सोच कर देखिए,
किसी भी व्यक्ति के साथ जब आपका झगड़ा होता है, क्या होता है, सच्चाई में क्या होता है वहां पर, हमारा भावनाएं खेलने लगता है। ओके, हमारा गुस्सा, हमारे नफरत का भावना, हमारे जलन रखने का, जेलसी, ओके, अलग अलग भावनाएं खेलने लगते हैं। ओके, हमारे जबान से जो हम गलत शब्द बोल देते हैं, ओके, ये सब भावनाओं के कारण होता है। तो हमारे लिए अमोरी, जेबूसी, कनानी, हित्ती, ये सब दुश्मन कौन है? हमारे अंदर छिपा हुआ जड़ का स्वभाव है। Who is the Amorite and Canaanite and Perizzite and Hittite and all these enemies in our spiritual life today? It is the fleshly behavior in us. So God has delivered us from Satan, from the bondage of sin, from the bondage of Satan, and he has led us into something. Okay, who is that? He has led us into ourself. He is making us, the Holy Spirit is making us look into ourself. What a wretched man we are. परमेश्वर हमारे अंदर जिस दिन हमने उनको ग्रहण किया, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया, हमें अगुवाई करने के लिए, अगुवाई करके कहां ले जाने के लिए? हमारे अंदर भीतर ले जाने के लिए और दिखाने के लिए कि हमारा अंदर कितनी गंदगी छिपा हुआ है, कितने गंदे स्वभाव है। पवित्र आत्मा हमें दिखाता है वो गलत स्वभाव जो हमारे अंदर है ना, वो है हमारा दुश्मन। Our fight is not against flesh and blood, but against the principalities of darkness. Okay? हमारा मल युद्ध हमारे अंदर छिपे हुए wickedness, दुष्टता के विरुद्ध है हमारा युद्ध। Okay? So let us not fight against our wife, against our husband, against our children, against our neighbor or our boss at our workplace. Let us not fight against anybody else, but our fight is against our own self behaviors, wrong behaviors, the wickedness in us. When our boss at our workplace does something injustice to us, if our neighbor does something injustice to us, is any kind of unrest, hyperness, worry, hatredness, jealousy coming out of us, that is what we need to deal with. We don't need to deal with our boss or our neighbor. We don't need to deal with our wife or our husband. We need to deal with our own emotions. Okay? That is where God is leading us to. परमेश्वर हमें उन चीजों के, उन भावनाओं के अंदर हमें अगुवाई करता है, क्योंकि हमारा युद्ध किसके विरुद्ध है? गलतियों का पुस्तक निकालिए, Galatians chapter 5 verse 16 and 17. गलातियों का पुस्तक 5वां अध्याय उसका 16 और 17। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो, उसका मतलब पवित्र आत्मा जैसा आपको अगुवाई करता है वैसा चलो। हाँ, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, तब तुम शरीर के लालसाओं को पूरा न करोगे। यदि तुम आत्मा के अनुसार नहीं चलोगे तो तुम्हारा शरीर कार्य करने लगेगा, तुम्हारा जड़ कार्य करने लगेगा। Your flesh will show its ugly nature if you don't walk according to the spirit. So it is a choice. ये एक चुनाव है, हमें एक चुनाव लेना है और ये चुनाव रोज हमारे सामने आता है। This choice we have to make daily, because every day is a challenge. What is the behavior that we have to show? The Christ-like nature that we have to show. That is every day that
fight between the spirit and the flesh goes on. आत्मा और जड़ के बीच में ये युद्ध रोज चलता रहता है. ओके, और ये युद्ध में कौन जीतता है? कौन जीतता है? आप सब बोलेंगे आत्मा जीतता है. ओके, नहीं, जरूर पवित्र आत्मा ज्यादा ताकतवर है, लेकिन आत्मा, पवित्र आत्मा तब जीतता है जब तुम और मैं इस पवित्र आत्मा को अनुमति देंगे. तो हमारे चुनाव के ऊपर है. ओके, हम किसको ज्यादा खाना देते हैं वो ज्यादा ताकतवर बनता है. एक प्रचारक ने सही कहा है. ओके, यदि आप आपके जड़ को, आपके शरीर को ज्यादा उकसाते हो, आप यदि आपके जड़ को ज्यादा खाना देते हो, हाँ, आपका जड़ कहता है, आपका मन कहता है, आपका भावनाएं कहता है कि उसको मैं एक सबक सिखाऊंगा, और आप यदि उस आवाज को आमीन बोलते हो तो आत्मा हार जाता है. पवित्र आत्मा हार जाता है. ओके, हार जाता है. इसीलिए नहीं कि पवित्र आत्मा कमजोर है, परंतु इसीलिए क्योंकि हमारे निर्णय के अनुसार पवित्र आत्मा कार्य करेगा. चुनाव हमारे हाथ में है. ओके, इसीलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 28 से 30 अध्यायों में स्पष्ट रीति से परमेश्वर इजरायलियों को कहता है, यदि तुम व्यवस्था का पालन करके जियोगे, ओके, यदि तुम पालन करोगे तो तुम जियोगे. If you obey, you will live. If you do not obey, you will die. ये हमारा चुनाव है. It is our choice. ओके, तो दुश्मन कौन है ये हमें समझना है. अमोरी और कनानी और पेरिजी हमारे जीवन में कौन है ये हमें समझना है. तो पहला हमने पढ़ा एफिसियों का पुस्तक में कि हमारा मल युद्ध लहू और मांस में नहीं, परंतु ओके, आत्मा में है हमारा युद्ध. और ये आत्मा में क्या युद्ध चल रहा है? गलातियों का पुस्तक 5वां अध्याय में हमने पढ़ा. ओके, यदि आत्मा में चलोगे तो तुम शरीर के लालसाओं को पूरा नहीं करोगे. और 17 वाक्य पढ़िए. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है. हाँ, ये लगातार चलता रहता है. ओके, 24 घंटा हमारे जीवन में शरीर आत्मा के विरोध और आत्मा शरीर के विरोध, अंदर हमारे भीतर ये युद्ध चलता रहता है. किसने हमें इस युद्ध में प्रवेश कराया, अगुवाई किया है? पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया है. The day we accepted the Lord, okay, as our personal savior, he gave us the Holy Spirit, and the Holy Spirit led us into this land of the Amorites and Perizzites and Canaanites, into this fight between the flesh and the spirit. Because now we have the spirit in us, there is a fight. Before we didn't have the spirit. That's why we always used to say yes to the flesh and we used to do the deeds of the flesh. But now we have the spirit. That's why there is a war. Okay. जड़ आत्मा के विरुद्ध और आत्मा जड़ के विरुद्ध. आगे पढ़िए. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है. हाँ, और इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ. ताकि जो तुम करना चाहते हो वो न कर पाए. इसीलिए ये दोनों एक दूसरे का विरुद्ध है. ओके, देखो हम मसीह लोग बहुत बड़े एक क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसा हुआ है. ओके, एक अर्थ से यदि देखा जाए तो वो प्रॉब्लम क्या है? हम ऐसे एक स्थान में खड़े हैं जहां पर हमारे अंदर पवित्र आत्मा भी है और हम जड़ में भी है. जब तक हमारा मृत्यु नहीं होता हम जड़ में भी जी रहे. वी आर इन द फ्लैश. और ये वचन स्पष्ट कहता है 17वां वाक्य
कि ये दोनों एक दूसरे का विरुद्ध है। कौन दोनों? पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है और ये जो जड़, ये जो फ्लैश है जिसके अंदर ये आत्मा है, ये दोनों एक दूसरे का विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध है? क्योंकि, पढ़िए 17वां वाक्य का अंत में क्या लिखा है? क्योंकि जो तुम करना चाहते हो वह करने न पाओ। हाँ, क्योंकि जो तुम करना चाहते हो वो कर न पाए, इसके लिए। ओके, तो हमें सावधान रहना है जब हम प्रार्थना में ऐसा प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये चीज करना है, मुझे ये चाहिए, मैं विश्वास करता हूं कि आपने दे दिया है। अरे, हमें जो चाहिए वो हम न कर पाए, इसीलिए पवित्र आत्मा विरोध कर रहा है, यदि वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं है तो। इसीलिए हमेशा जांचना बहुत जरूरी है। हम जो कुछ भी चाहते हैं, सब कुछ क्या परमेश्वर का इच्छा है या नहीं। ओके, सो both these are contrary to each other. The English Bible says the flesh and the spirit are against each other, are always in conflict. Okay, why? So that you do not do the things that you wish. तो हमारा विश पूरा करने के लिए नहीं बैठा है पवित्र आत्मा। ओके, ये हम सब जानना बहुत जरूरी है। हमारा बहुत सारा विश है, बहुत सारा आशा और इच्छा है इस संसार में, लेकिन पवित्र आत्मा वो पूरा करने के लिए नहीं बैठा है। जो हमारा इच्छा, जो भी इच्छा परमेश्वर का इच्छा के साथ मिलता है, वो पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। ओके, तो परमेश्वर ने हमें शैतान के गुलामी से छुड़ाया, बाहर निकाला और हमें हमारे अंदर ही प्रवेश कराया, जांचने के लिए, देखने के लिए हम कैसे हैं, कितने दुष्टता हमारे अंदर है। और वो जब हम पहचानेंगे कि हमारे अंदर दुष्टता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हम विजय प्राप्त करेंगे। जैसा इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कहा, मैं दुश्मनों को क्या करूंगा? पढ़िए निर्गमन का 23 अध्याय, उसका 23 वाक्य का अंत में, उनका सत्यानाश कर डालूंगा। सत्यानाश कर डालूंगा। ओके, तो परमेश्वर ने हमें अपने ही अंदर प्रवेश कराया ताकि हम अपने ही अंदर झांक कर देख सके हमारा दुश्मन कौन है। कौन है हमारा दुश्मन? हमारा जड़। The flesh is our enemy because God expects us to live according to the Spirit. So when we stand on the side of the Spirit, our flesh, our emotions, the wrong emotions, it is constantly in conflict with the Spirit, the spiritual emotions. God says, love your enemies. Our flesh says, take revenge. परमेश्वर कहता है दुश्मन से प्रेम करो, हमारा जड़ का भावनाएं कहता है कि नफरत करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है क्षमा करो, हमारा जड़ कहता है कि रिवेंज लो। ओके, सबक सिखाओ, ऐसा जड़ का भावनाएं कहता है। तो हमारे भावनाएं बहुत कुछ कहता है। ओके, लेकिन हम किसको आमीन कहेंगे, ये हमारा एक चुनाव है। यदि हम आत्मा को आमीन कहेंगे, पता है क्या होता है? पवित्र आत्मा के उस धीमी आवाज को यदि हम आमीन कहेंगे, हाँ कहेंगे, तो जैसा इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे दुश्मनों को क्या करूंगा? सत्यानाश करूंगा। सत्यानाश करूंगा। तो परमेश्वर हमें, मसीह लोगों को क्या कहता है आज के तारीख में?
तेरे उस नफरत के भावना को मैं सत्यानाश करूंगा, परमेश्वर कहता है। तू सिर्फ मुझे हाँ कह, तू सिर्फ मेरे वचन को हाँ कह। मैंने तुझे कहा क्षमा कर, तू हाँ बोल, तू क्षमा कर, और तू देख मैं तेरे अंदर के उस नफरत के भावना को कैसे सत्यानाश करता हूं। तू सिर्फ हाँ कह, दुश्मन को प्रेम कर, मैं देख तेरे अंदर के नफरत को, वो बदला लेने के भावना को मैं निकाल दूंगा। और ऐसे करते 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 एक एक दुश्मन हमारे अंदर जड़ के भावनाओं को, गलत भावनाओं को एक एक करके परमेश्वर सत्यानाश कर करके, जैसा इजरायलियों के जीवन में अमोरी को, कनानी को, हित्ती को, पेरिजी को, जेबूसी को, हर एक को एक एक करके परमेश्वर ने सत्यानाश करके अंत में इजरायलियों को वो देश दिया जो दूध और मधु से बहता है। हमारे अंदर के हर एक गलत भावनाओं को सत्यानाश कर करके ऐसा एक दिन आएगा इस संसार में ही जब हम कह पाएंगे तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा हो, जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी में। हम आत्मा में चलने लगेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना का पुस्तक जब आप पढ़ेंगे आपको एहसास होगा, यूहन्ना जो यीशु का शिष्य कहता है आत्मा में चलने के बारे में, प्रेम में चलने के बारे में, ये संभव है, ये संभव है इस संसार में। ओके, तो हमारे जो उत्तर, हमारे रिस्पॉन्स जो है परमेश्वर के प्रति, उनके वचन के प्रति, उसके अनुसार होता है हमारे जीवन में जीत, उसके अनुसार होता है। ओके, Lona, at the end of the word, we will sing that song once again, Beautiful Name, the first song that we sang. So please be ready. Okay. तो हम इस प्रकार से जैसे आत्मा में चलने के लिए, ये एक दिन में नहीं होता। जब हम जैसा इजरायली लोग मिस्र देश से निकल गए, जब हम परमेश्वर को ग्रहण किया, हमारा उद्धार हुआ, उस पहला दिन से ही अचानक नहीं होता। हमारा भावनाएं जो है ना, गलत भावनाएं, गलत स्वभाव, वो अचानक नहीं निकलता। एक एक करके एक इट्स अ प्रोसेस। ओके, लेकिन कितना समय लगता है हमारे अंदर के गलत भावनाओं को पूरी तरह से निकलने के लिए? कितना समय लगता है? उसका उत्तर यही है, जितना जल्दी हम अपने आप को आत्मा का अधीन करेंगे, हमारे जड़ को आत्मा के अधीन जितना जल्दी करेंगे, उतना जल्दी हम इन गलत स्वभावों से आजाद हो जाएंगे। इजरायलियों को देखो, मिस्र देश से छुड़ाने के बाद कनान देश पहुंचने का यात्रा केवल मेरे ख्याल से 1 हफ्ता का, 7 दिन का यात्रा था, परंतु कितना दिन लगा? 40 साल। हमारे ऊपर है हमारे जड़ के भावनाओं को, गलत स्वभावों को के ऊपर विजय कब प्राप्त होगा, हमारे ऊपर है। हमें 40 साल लेना है या हमें 7 दिन लेना है, हमारे ऊपर है, हमारा चुनाव के ऊपर है। क्या ये आसान है? बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो पवित्र आत्मा का सामर्थ दिया है हमें। लेकिन हमें क्या लगता है विश्वासियों को कि पवित्र आत्मा दिया है मतलब मैजिक हो जाना चाहिए। वी ट्रीट गॉड एज अ मैजिशियन, इट डजंट हैपन। पवित्र आत्मा जरूर दिया है और वो सामर्थी है जो संसार में है, उससे हमारे अंदर जो है वो सामर्थी है जरूर, लेकिन हमारे कहने पर वो कार्य करता है। हमारा स्वतंत्र इच्छा हमसे छीना नहीं गया है अब तक। हमारा स्वतंत्र इच्छा के अनुसार हम जब हाँ कहेंगे, पवित्र आत्मा ओके दुश्मनों को सत्यानाश कर देगा। So let us say yes to the Lord and no to the flesh always. Okay? No to the flesh. हमारा जो
दुश्मन जो शैतान हम बोलते हैं ना, वो शैतान को तो परमेश्वर ने ऑलरेडी हरा दिया है, ऑलरेडी हरा दिया है क्रूस के ऊपर। लेकिन हमारा जो जड़ है ना, हम स्वयं, इसको परमेश्वर काबू में नहीं लाया है, वो परमेश्वर नहीं लाएगा। हम स्वयं आत्मा के अधीन लाना बहुत जरूरी है हमारे जड़ को। We have to bring our flesh in submission to the spirit. That was not done on the cross. On the cross, Satan was defeated. Okay, now it is our turn to make a choice and bring in submission to the spirit our flesh. Okay, let us do that. Okay, we'll sing those lines again. Death could not hold. Okay, those lines, let us sing it again. आइए हम सब इस आराधना को, आराधना के शब्दों को हम समझकर गाएंगे। Yes, Lona, over to you. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. And death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, and you have no equal, now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is. परमेश्वर का नाम अति सामर्थी नाम है। हर घुटना टेके, हर जबान कबूल करे कि यीशु ही प्रभु है। हमारे हर एक गलत स्वभाव, भावनाएं उस नाम के सामने झुक जाए। In the name of Jesus, every spirit of anger, every spirit of hatred, every spirit of jealousy, every worrying spirit, every anxious spirit that is in us, be submitted in the name of Jesus. हर एक नफरत के भावना, हर एक चिंता करने वाले भावना हमारे अंदर, हर एक क्षमा न करने वाले भावना, हर एक डर की भावना हम सबके अंदर यीशु के नाम के सामने झुक जाए। हालेलुया। Praise you, God. Praise you, Lord.
आइए हम सब मिलकर एक मन होके अपने आप के लिए प्रार्थना करें. We will pray for ourselves so that we will not fear, we will not worry, we will not be anxious, we will not hate, we will not be unforgiving, we will not live in the baggage of the past, but we will enjoy walking in the Spirit. Let us pray for ourselves. आइए हम सब हमारे आंखें बंद करें और प्रार्थना करें. जैसे हम प्रार्थना करेंगे, अभिषेक पवार और श्वेता पवार के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे. उनके शादी का सालगिरह कल है. जोसेफ पिंटो ब्रदर, प्लीज प्रे फॉर ईच वन ऑफ अस. Hallelujah, Jesus. Father, we thank you and praise you for your wonderful works, O Lord God, Father. Thank you for your beautiful words, O Lord God, Father, every day teaching us, O Lord God, Father, how to overcome this flesh, O Lord God, by your Spirit, O Lord God, which you have given unto us, Lord God. And we are grateful to you, O Lord God, Father, for this moment, the heavenly manna which you have given unto us, O Lord God. We bless you and we glorify your name, Lord God. And this time we also thank you for our brother Abhishek and sister Shweta, O Lord God, Father, that you have been also a blessing to them, O Lord God, that you have joined them together as husband and wife, O Lord God, Father, and you have been with them throughout this journey, Lord God, Father, that 1 year that is passed by, Lord God. Thank you for your faithfulness towards them, Lord God. Thank you for your blessing, O Lord God. Thank you for your abundance life that you have poured out in their lives, O Lord God, Father. We are grateful to you and we bless you, Lord God, Father, for their lives, Lord God. And we pray as they walk with you, Lord God, in the days ahead, Lord God, Father, fill them with the power of your Holy Spirit, Lord God. Let your word that becomes alive in their lives every day, Lord God, that they may say no to the flesh and yes to you, Lord God, Father, and they will walk by your Spirit, Lord God, and not fulfill the desires of the flesh, Lord God. We thank you and bless you for their lives, Lord God. We pray, Lord God, Father, that they may be blessed in spiritually, financially, and emotionally, Lord God. In every way, Lord God, Father, you bless them and take them to the paths, Lord God, of righteousness and holiness, Lord God. And they will be able to draw the people into your kingdom for your glory, for your honor, Lord God. We bless them with the mind of Christ, and we bless them as husband and wife, Lord God, Father, that they will not only blessing to the church, but also their families, friends, Lord God, and the workplaces, Lord God, that you have placed, Lord God. We thank you and bless you, Lord God. In Jesus' name, Lord God. And we thank you, Lord God, Father, for this time for our brother Jose, oh Lord God, Father, that you have been so good to him, Lord God, Father, that you have given this so kind, loving brother, Lord God, who's teaching us your word daily, Lord God, Father, and he is filled with the power of your Holy Spirit. Thank you for the hunger and desire, Lord God, and longing that he has for you, Lord God. Father, we thank you for his life, Lord God, that you have kept him so many years in your kingdom, Lord God, and the years ahead, Lord God, Father, we pray for your abundance blessing upon his life, Lord God. Father, we pray for dimensions, Lord God, new gateways to be open in his life, Lord God, Father. We pray for the insight of your word, Lord God, revelation of your word, Lord God, more deeply and more clearly, Lord God, Father, that he may be able to see the horizon that is set before him by you alone, Lord God. Yes, Lord, we thank you for you. He has been a blessing to us, Lord God. Father, we pray that you bless him physically, financially, materially, Lord God, in every way, Lord God, that he may lead your people in righteousness, Lord God, Father, that you have brought him, Lord God. We thank you and bless you for his family also, Lord God, Father, together, Lord God. We give you glory and honor, Lord God. We thank you for his life and that years ahead, Lord God, you're going to bless him more and use him mightily in your kingdom for your glory, for your honor. In Jesus' mighty name, pray now. And all the God's people said, Amen. 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 Praise God. Praise To God. you, happy birthday to you. Happy birthday, dear Joseph. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Thank you. God bless you. Happy birthday. Happy brother. birthday. Thank Happy you. birthday. brother. Happy birthday, Jose brother. God bless you. Thank you. Thank you for all your prayers. Happy birthday, brother.
थैंक यू, हैप्पी थैंक यू। बर्थडे। आपका बर्थडे का तो पता ही नहीं। पता सबके लिए थैंक यू, थैंक यू। सरप्राइज था फिर। हेलो ब्रदर, हाँ ब्रदर, हाँ, बोलिए। हेलो हेलो हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है। ब्रदर, आज सैटरडे, इतना अच्छा दिन, आपने वचन भी दिया और आपका बर्थडे भी है। परमेश्वर आपको इतना आशीष दे, इतना आशीष दे, आपके पूरे परिवार को भी आशीष दे। थैंक यू, थैंक यू। आप सबका प्रार्थना की जरूरत है। और आपको ये जो सेवकाई है, और आपको और भी इस्तेमाल करे परमेश्वर अपने राज्य के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ये जस्ट वांटेड टू टेल ऑन दिस ओकेजन टू ऑल ऑफ यू, ये जो वचन बांटना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। शत्रु का कार्य हमारे जीवन में, हमारे परिवार में भी बहुत होता है। तो आप लोगों का प्रार्थना बहुत जरूरी है, हम सबको, हमारे परिवार को, मुझे। So thank you for all your prayers. Continue to pray for us, pray for me. Thank you and God bless you. And Abhishek and Shweta, congratulations in advance. Thank you, brother. Thank you, all of you. Yeah. Happy anniversary, Abhishek and Shweta. हैप्पी एनिवर्सरी। Thank you, Sister Anjali. Thank you so much. Welcome. सालगिरह मुबारक हो, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। Thank you, Joseph uncle. Thank you so much. Okay, God bless you. Good night. कल मिलेंगे। गुड नाइट। Bye. अरे दया प्रभु।